गुरु जी वल्लों बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी दे जो पावन सिद्ध गोष्ठ की कथा चल रही है, उस दे नाल सांझ पाउण लई जुड़ी हुई साध संगत जी, अज जिस पौड़ी की असी व्याख्या करनी है, उहदे विच बड़े मूल जे प्रश्न सिद्धां वालों पूछे गए ने। सिद्ध गुरु नानक साहब जी नूं कहिंदे ने भी तुसीं सानूं कहा सी ये उदासियां वाला बाणा क्यों पाया होया है, क्योंकि सिद्धां दे नाल गुरु नानक साहब जी की 2-3 बार गोष्ठ हुई है। एक बारी महाराज नानक मता साहब गए ने, अचल बटाले हुई है, और एक बारी सुमेर पर्वत पर हुई। जदों महाराज सुमेर पर्वत पर गए, उदों उन्होंने जिहड़ा बाणा पाया सी वो सन्यासियों वाला सी। इसे गल नूं आधार बना के हुण अचल बटाले महाराज जी दे नाल सिद्धां दी जदों गलबात हुंदी है, विचार चर्चा हुंदी है, उदों महाराज जी ने सिद्धां वाला बाणा नहीं पाया, सन्यासियों वाला बाणा नहीं पाया। हुण वो इसे गल नूं पुछदे ने कि तुसीं ये सन्यासियों वाला बाणा हुण ला दिता है, हुण तुसीं गृहस्थियों वाला पा लिया है, पर गृहस्थी बंदा साधु संत किवें हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इस करके महाराज जी नूं उन्हां सवाल पूछया। वो कहिंदे ने जो तुसीं सानूं उत्थे मिले सो, उदों तुसीं उदासियां दा बाणा पाया होया सी, ते उन्हां दा सवाल है किस कारण गृह तजियो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी। हुण इहदा मतलब है, निवासी का मतलब है धारण वाले, धारे हुए। महाराज जी नूं ये पुछदे ने क्यों घर छड्डिया ते क्यों तुसीं उदासी बने हो, ते क्यों ये उदासी भेग धारण किया होया है, इसका कारण की है? वैसे साडे देश दे विच सन्यास नूं बड़ी वड्डी महानता दी गई है। अक्सर गुरबाणी वैसे ये कहती है, मनुख घर दीयां मुश्किलों तो डरदा घर छड़ जांदा है, आपदा का मारा गृह ते नसता। पर बहुते लोग अंत दे साल सन्यास चले जाते सन, या शुरू तो ही जिंदगी सन्यासियों वाली गुजारते सन। उसका एक कारण सी, वो समझते ने दुनिया एक शोर है, ते शोर विच रह के, रोले विच रह के शांति ते नहीं अपड़िया जा सकता। वो ये मानते सन, क्योंकि जे शांति ते अपड़ना है, फिर वो शांति दे विच रहना पड़ेगा। इस करके बहुत जे लोग घर छड्ड के चले गए, जंगलों में निकल गए,
और अपने आप ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਈਏ, ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਉਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 5-5 4-4 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
मन करके छड्डना बहुत औखा है। शरीर करके सब कुछ त्याग देवांगे, मन करके त्यागना बहुत औखा है। और याद रखना, मन मनुख उदों ताईं संतोखी है जदों ताईं उन्होंने लोभ का मौका नहीं मिले। मनुख उदों ताईं सच्चाई ते खड़ा है जदों ताईं झूठ का मौका नहीं मिले। मनुख उदों ताईं सत ते खड़ा है जदों ताईं किते विचार का मौका नहीं मिले। ये विचार, ये संतोख, ये सत टुट जाते हैं जिस दिन मौका मिले, संयम टुट जाता। इस करके शरीर नाल सब कुछ छड्डण दे नाल भी मन इस नूं नहीं छड्डदा। दुनिया के बड़े बड़े योगी होए ने। भरथरी सन, जेड़े बड़े बड़े राजे सन, उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखिया है, विराग शतक। भरथरी ने सारा परिवार छड्डिया, राज भाग छड्ड के दुनिया की बाहर कंदरां च निकल गए। भरथरी लिखते ने, कहते सारा कुछ छड्ड बैठा सी और मैनू ये लगता सी मना किते आ बाहर सारा कुछ छड्ड देगा, जिवें मनुख आम कहा जाता है। क्योंकि समाज नूं एक सुनसान बनाउण दी साजिश चलती रहिंदी है। आम लोकी ये गल कहंदे ने, ये दुनिया कुछ नहीं, ये दुनिया दुखों का घर है, इनू छड्ड जाना है, फिर दुनिया च रह क्यों रहे हैं। गुरबाणी भावें कि ये गल कहती है, ये सब कुछ सृष्टि ये परमात्मा की बनाई हुई है और इस दे विच रहना जिमें जल के अंदर कमल रहिंदा एवें इहदे विच रहना। हुण जो भरथरी ने सारा कुछ छड्ड दिता, कहंदे एक दिन मैं सड़क ते तुरिया जावां, किसी ने पान नूं थुक के सुट्टिया होया सी। तुरिया जांदा सी, ध्यान वो पान ते पिया जिहड़ा थुक किसी ने सुट्टिया होया सी। ਉਹਦੇ ਤੇ सूरज दीयां किरणां लगियां, एवें लग रहा सी जिवें हीरा पिया होया। भरथरी कहंदे मैं नेड़े जाके हथ मारिया, हथ लिबड़ गया। कहंदे मैं मन नूं आखिया, मना इड्डे वड्डे राज छड्ड के आया, सब कुछ छड्ड के आया, अज फिर लोभ दे विच किहदे विच हथ मार लिया। ਇਹਦਾ मतलब ये है सब कुछ छड्ड के भी कुछ नहीं छड्डिया, सब कुछ छड्ड के भी नहीं छड्डिया गया कुछ। याद रखना, मनुख दुनिया छड्ड के चला जाता है, किते क्रोध नूं छड्ड पाएगा। दुनिया छड्ड के जाके एक मनुख जंगल दे विच बैठ गया ते उत्ते पंछी रोला पा रहे सी। वासना चलिया, क्रोध जाके कहता है जे मेरा वस चले तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ फड़ के मार देना। कोई कोल बैठा सी सुनन वाला, वो कहन लगे हजे ताईं दुनिया भी छड्डी, सब कुछ छड्डिया, क्रोध हजे ताईं नहीं छड्डिया। इनू गुरबाणी इस तरीके नाल कहंदी है, कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजिया ना जाए। ये सब कुछ छड्ड देना बहुत सौखा है। जे ये कुछ छड्डिया परमेश्वर मिल जाता होए, अज अद्धी दुनिया ब्रह्म ज्ञानियां दी होनी सी। क्योंकि वकारां दे विच मन लिबड़े होया है। मन चुगली नूं बड़ी औखी तरीके नाल, मन उदासी बड़ी औखी करदा है, शरीर लई उदासी बड़ी सौखी है। शरीर लई उदासी उत्ते गेहूं कपड़े पा लेने, भगवे वस्त्र पा लेने, घर छड्ड के तीर्थां दा रटन करना, ये बहुत सौखा है। और गुरबाणी ने तो बड़ी बारी किया, ये बहुत सौखा है, कर लेना बहुत सौखा है।
ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਦ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, किस कारण यह भेख निवासी, किस वखर के तुम वणजारे, क्यों कर साथ लंघावो पारे। किहड़े अक्षर दे तुसी वणजारे हो, किहड़ा शब्द जपणगे तुहाडे पैरोकार ते वो पार उतारा उन्हां दा हो जाएगा। हुण गुरु नानक साहिब जी दे उत्तर मैं आप जी दे सामने रखा। महाराज कहते गुरमुख खोजत भए उदासी। असल दे विच कहते उदासी तो मैं भी होया सी, पर मेरे ते तुहाडे उदास विच बड़ा फर्क है। तुहाडा उदास दुनिया छड़ जाण दा तुहाडा मतलब ये सी, ये दुनिया दे विच कुछ भी चंगा नहीं तां ही छड़ के गए। पर जे दुनिया दे विच कुछ भी चंगा नहीं, फिर दुनिया की रोटी किवें चंगी हो सकती है। असल दे विच दुनिया च जिहड़ा प्रशादा बनाउंदी है वो हत्थां नाल ही बनदा। जे दुनिया नूं छड्ड के गए हो, दुनिया चंगी नहीं, फिर दुनिया दे विच पैदा होने वाला अनाज किवें चंगा है, ये दुनिया के फल किवें चंगे ने, भुखे रहो। गुरबाणी कहती, महाराज कहन लगे जोगियां नूं, तुहाडे दुनिया छड्डण च ते मेरे च बड़ा फर्क है। इतों हदायत भी है, कोई मनुख कोई गुरसिख घरों बाहर जा भी सकता है, पर उसका कारण ये नहीं होएगा मैं घर इस करके छड्डना, दुनिया दुखों का कारण नहीं। वो दुनिया दे विच इस करके जा रहा है, घर छड्ड के इस करके गया है किते मैनूं कोई गुरमुख मिल जाए, कोई आवे संतो, कोई हर का जन संतो मोहे मार्ग दिखला, कोई ऐसा हरी का जन मैनू लभ पे घरों बाहर निकलिया। जिमें मन दे विच उदास होया भी मना दुनिया दे विच कोई रब दा नाम लईए, घरों निकलिया उदासी कीती, कादे वास्ते कोई गुरु दा सिख मिले। महाराज कहते मैं भी उदासी ते गया सी, यात्रा ते गया होया सी, क्योंकि उदासी शब्द के दो मतलब ने, एक मतलब है यात्रा, एक मतलब है उदास, उदासन होना, दुनिया तो निराश हो जाना, क्योंकि निराश होने तो बगैर नाम नहीं मिल जाता। एक चीज़ तो उदास होवांगे तो दूजी लैण की तैयारी होंगी है। महाराज कहते मैं भी घर छड्डिया सी, पर मैं तुहाडे वर्गे गुरमुखां नूं मिलण लई। महाराज ये नहीं कह रहे मैं दुनिया का उधार करन लई, नहीं, तुहाडे वर्गे गुरमुखां नूं मिलण लई। गुरमुख खोजत भए उदासी। अगे महाराज जी कहते ने दर्शन के ताई भेख निवासी। तुहाडे वर्गियां दे दर्शन करन लई, तुहाडे तो कुछ शिक्षा लैण लई मैं ये निवास किया। कोई मैनू कोई गुरमुख मिल जाए, मैनू रब दा राह दसे। इस करके ये मत समझना कोई गुरु दा सिख भी घर छड्ड के किसी ना किसी गुरमुख नूं खोजण लई उदासी कर सकता है। जिमें गुरु अंगद देव जी महाराज भावें के सदा ही देवियां ते जाते सन। एक दिन जिस दिन पता लग्या गुरु नानक साहब करतारपुर ने घर छड्ड के गुरु नानक साहब कोल रहे, पर उन्हां दा छड्डना इस करके नहीं सी दुनिया दुखों का घर है, नहीं। और गुरबाणी ये कहती है संदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विचे होवे मुक्त। इसका मतलब ये नहीं है दुनिया ये सोचती रही अज तई, जिवें इत्थे कोई 100 मनुख बैठे होण
जे वो बड़ा रोला पा रहे हो, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। उस रोले ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ भी अपने आप ते काबू रखना ये सिੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ दुनिया ਤੇ सब कुछ खांदियां ਪਹਿਨਦਿਆਂ हसदियां खेडदियां मुक्ति विच ही होनी है, दुनिया छड्ड के नहीं। छड्डण दे नाल मुक्ति नहीं है। महाराज जी कहते ने मैं दुनिया नूं छड्ड के गया गुरमुख खोजण लई। कहते किहड़ा अखर दे वणजारे हो तुसीं? कहते साच वखर के हम वणजारे, नानक गुरमुख उतरस पारे। वो कहते असीं वणजारे किहड़ी चीज़ दे आ? सच वखर दे। वणज करो वणजारे हो, वखर लिहो समाल। असल दे विच जिन्ने मनुख दुनिया ते आए ने और आके चले गए ने, कई आ रहे ने कई जा रहे ने, सारे के सारे ये वणजारे ने। जिन्ने असी भी इत्थे बैठे हैं असी सारे वणजारे हैं। कुछ लैण लई आए हैं, वो लैके इत्थे जाना है। वणजारे का काम की हुंदा है? व्यापार करना। एक व्यापारी अपना घर छड्ड के दूजे देश में जाता है व्यापार करने दे लई। व्यापार करने लई हरेक मनुख इत्थे आया है। वो वक्री गल है, व्यापार वो किसी चीज़ का भी कर सकता है। कई बारी अज्ञानता वस होके अज्ञानता दे मगर लग के मनुख दुनिया ते सही व्यापार नहीं करता। इवें समझ लो, कई बारी किसी का कोई बच्चा बड़े पैसे लैके घरों जाए व्यापार करने दे लई, उहदे नाल दे संगी साथी उन्होंने विगाड़ देण ते वो व्यापार ना कर सके। एवें ही महाराज कहते ने दुनिया ते मनुख व्यापार करने लई आया है। पर महाराज कहते ये जिहड़ी दुनिया है, ये महाराज कहते जिवें पंख जो मोह पग नहीं चल है, हम देखा तो डूबिए। एहो संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। ये दुनिया संशय विच है। संसा कादा है? ये संशय पता नहीं आ सच है कि परमेश्वर सच है। संसा ये भी है, पता नहीं परमेश्वर है कि नहीं है, ये भी संशय। पर इत्थे वणजारा व्यापार करने लई आया है। जे कोई कहे मैं नाम भी जपदा मैनूं कुछ प्राप्त तो नहीं है, इक्को दम प्राप्ति भी नहीं। कोई भी व्यापार अज खोलांगे 3 साल ते उहदा कुछ भी नहीं होंदा। 2-3 साल के व्यापार सैट करने ही लग जाते हैं। जे नाम अज शुरू किया अज ही फल नहीं है। अज शुरू करांगे हौली हौली फल मिलना शुरू हो जाएगा। पर वणजारे नूं व्यापार करना चाहिए। महाराज जी तो कहते नाल दी नाल सानू महाराज तो ये भी कहते ने पाप पुन दोए बैल विसाहे पवन पूंजी प्रगासिओ। ये जिहड़े साह ने ये साडी दौलत है। ये दौलत ने नाल साहां दी दौलत दे नाल कुछ भी खरीदा जा सकता है। कोई मनुख सत संगत दे विच बैठ के गुरु दी बाणी दे शब्दां नूं विहाज लैंदे ने, गुरु दे बाणी गुरु दी साखी विहाज लैंदे ने, गुरु दे शब्दां दी व्याख्या विहाज लैंदे ने। ये नहीं विहाजदे। ये मनुख दे अपने ते गुरु किरपा करे उन्होंने वैसे सत संगत मिलती है। साच वखर के हम वणजारे, असी वणजारे हाँ सच्चे वखर दे। हमेशा वाहिगुरु जपना यही साडा व्यापार है। इस तो बाहर होर कोई व्यापार नहीं। भगत तो ये गल कह भी देंदे ने, कहंदे किन ही वणदिया कांसी तांबा, किन ही लौंग सफारी, संतो वणदिया नाम गोविंद का, निभही खेप हमारी। दुनिया कोई व्यापार करता ये नहीं इत्थे चांदी के व्यापार नूं माड़ा किया, सोने के व्यापार नूं माड़ा किया नहीं।
दुनिया विच मनुख वपार कोई भी करे पर कल्ला वपार दुनिया दा ना करे। जेड़ा वपार करन लई आया जिन्होंने महाराज कहते जा को आए सोई विहज। पर असल दे विच गल ये है मनुख अपने मनोरथ नूं भुल गया है। भुलण का कारण कई हो सकते हैं। जिवें मनुख ने जाना तो अमृतसर होए, इत्थों तुरे लुधियाने जाके इनू होर मनुख मिलन, इनू उलझा लैन, तो इत्थे ही रह, अमृतसर की करेगा, बस उत्थे उलझ जाए। जदों उत्थे उलझ जाता है समझो वो उलझ गया, अमृतसर सारी जिंदगी नहीं जा सकती। इस तरीके दे नाल मनुख दुनिया ते आया, दुनिया ते आके उलझ गया। इनू महाराज कहते ने दुनिया ते अगे ही वकारां दे संशय च है, वकारां दे संशय विच उलझ गया। ये दुनिया वकारां दे संशय विच सी। दुनिया ने सोचा खाना पीना सोना सिर्फ यही सब कुछ है, खाओ पियो पाओ सो, बस इस तो बाहर कुछ नहीं। पर गुरमुख ये नहीं सोचते। साच वखर के हम बन जा रहे, नानक गुरमुख उतरस पारे। जेड़े साडे उन महाराज नूं कहंदे ने क्यों कर साथ लंघावो पारे, तुहाडे जेड़े नाल दे गुरसिख ने वो दुनिया में किवें पार उतारा उन्हां दा होए करेगा। महाराज ने यह भी उत्तर दिता, कहंदे जेड़े मेरे गुरसिख होणगे वो गुरु के दसे शब्दों पर चलते रहणगे, उन्हां दा पार उतारा हो जाएगा। नानक गुरमुख उतरस पारे। नाम जपणगे, वो गुरु की बाणी पढ़िया करनगे, गुरु के शब्दों पर तुरनगे, दुनिया के भवसागर तो पार हो जाएंगे। गुरु के सन्मुख रहणगे, गुरु की गल नूं मनणगे। और जदों तक गुरु की गल मन्नी नहीं जाती, ऐसी गल नहीं, कई बारी मनण नूं दिल भी करता है पर उन्हें कर्म नहीं होंदे, वो गल सीधी अंदर आ जाए। इस करके महाराज जी ने बड़ा सोहना तरीका दस्सिया है, जे कोई वो तरीके नूं अपना ले, गुरु की सारी बाणी का एक एक शब्द अंदर बहिंदा ही जाएगा। वो तरीका की है? महाराज कहते भरिया मत पापा कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग, किते नाम दे नाल ये मन रोज धुपे। सतनाम वाहिगुरु का जाप मनुख करता रहे। जिवें जदों बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु नानक साहब जी ने पूछा सी, महाराज सतनाम वाहिगुरु शब्द का की महात्म है? गुरु साहब जी ने कहा सी गगे अखर का मतलब है हनेरा, रारे अखर का मतलब है प्रकाश। ये वाहि शब्द जेड़ा है ये हनेरे तो प्रकाश वच लै। ये वाहिगुरु जपण का इन्ना महात्म है, किसी अंदर अज्ञानता दीयां जड़ां फैलियां होण इनू चानण करा दिंदा। महाराज ये भी कहते ने असल दे विच जिहड़ा सतनाम वाहिगुरु का जाप करदा है, कहते जे उहदी कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, जे उहदी कोई संसारिक इच्छा भी है, ये मंत्र जिहड़ा है उहनूं वो भी सिद्धि दे दिंदा, वो भी उहदी इच्छा पूरी कर दिंदा। इस करके हरेक जिन्ने भी पीर अवतार दुनिया ते आए अपने अपने मंत्र दे के दुनिया ते जाते रहे। इनू भाई गुरदास जी ने कहा है वाहे गुरु गुरमंत्र है जप हौमे खोई। ये भी सानू मंत्र गुरु साहब जी ने दस्या है। इनू जप के मनुख हौमे नू दूर कर लेंदा है। गुरु साहब जी साडे ते कृपा कर, सानू नाम की दात बख्शण। जिवें महाराज जी ने कहा है, कहते असी सच वखण दे बन जा रहे हैं। इस करके मैं ये भी कह दिया गुरसिखां दे विच उदासी नूं महानता नहीं है, गुरसिखां दे विच घर छड्डण नूं महानता नहीं। एवें मत समझना घर छड्डना बड़ी वड्डी गल है। जे घर छड्डिया परमेश्वर मिल सकदा होए, बहुत दुनिया ने ते घरां दे विच वास कीता ही नहीं। जिन्हों महाराज खुसरे क्या घर वास, खुसरे ते घरां च वास करते ही नहीं। बड़े ऐसे जंगली जानवर ने जिहड़े घरां च नहीं रहिंदे, दुनिया च नहीं रहिंदे। ते जंगली जानवर तो जंगलों में रहिंदे ने। कि वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए ने, कि वो शांत हो गए ने? वेखो याद रखना दुनिया दे विच जिन्ना कुछ ही प्रोटैक्शन बनाई है कि जंगली जानवरों वास्ते नहीं,
ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਏਟੀਐਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ 10-12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ? ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡਰ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜੈਸੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਐਸੀ ਯੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਨੀ, 84 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸੀ ਯੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾਮਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮ ਵਟਾਇਆ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੁਝ ਇਹੋ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਵੇਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੀ ਪੱਕੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ, ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ